Good afternoon, everyone. Today, I'm really very much thankful to each one of you for being a part of this certificate course. The motive why this certificate course is in existence. The reason is my father used to say, we as a social animal, our society gives us a lot. So, whatever you have, whatever you can give, whatever you can return to the society, you should return it to its utmost. So, friends, as I am a faculty of computer science, I thought it's my privilege to start up with a certificate course that is covering all the basics related to computers as well as MS Office and having some advanced elements of MS Office. Why I've selected this computer basics or I can say MS Office because due to COVID pandemic, almost everyone is now turning up towards computers. Somewhere or the other, we are in touch with working with computers, right? So now what I feel it is now it's my moral duty to upbring all my fellow friends, my fellow colleagues, my students, my neighbors, and all my citizens of India to make themselves so strong and computer literate that they can handle all sort of stuff regarding computers. Okay, so we'll have a starting of it. Yes, Jyoti ma'am, a prompt is being there on your screen mentioning unmuting yourself. Jyoti ma'am. Hai هذا ميوت جنة ديك هذا start video هذه Okay, so now we'll start up with. I hope everyone is excited. Whatever queries you have, friends, you can post it on the chat. If the time permits, we'll solve those queries there itself, or I'll share the answers to those queries in the group created. Okay. So now we all are here with a certificate course on computer basics and MS Office from basics to advanced. Let me formally introduce. I am your host and those. Okay, myself, I am Dr. Mamta Baheti. By profession, I am the head in Department of Computer Science, Hislop College, Nagpur. Now, my question to you all is why to learn computers and that too MS Office in it? You can unmute yourself and please post the answer. You can say, yes, why to learn computers and MS Office? Why so?
Yes, Aanchal, Arbaz. Ma'am, we want to learn computers because today we are fully independent on the technology. Very good. Anybody else? Yes, anybody else? One of our friend has mentioned for documentation. Yes. कंप्यूटर्स का यूज इतना ही है क्या या MS Ma'am, to Office keep का? record. Yes, Ma'am, to keep records. to keep records. May I know your name, ma'am? Ma'am, Ruchita. Okay. So, thank you. Friends, apart from documentation and we can say upbringing technology, we will find computers having a existence in all aspects of our daily work, irrespective. We can say like अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये भी एक जरिया है. कंप्यूटर्स अगर हमको आते हैं तो हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हमारा डेटा शेयर कर सकते हैं, राइट? या अगर मुझे किसी को कोई चीज किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट करवा के चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ. If I am working with, like, I want to record something, I want to create some innovative animations or all sort of stuff for entertainment or for as a profession, तो तब भी मुझे computers आना जरूरी है और बेसिक्स में MS Office आना जरूरी है. ओके? Okay. So now what we generally know about computers? We know, yes, what we know. You can unmute yourself for answering. कंप्यूटर्स में आपको क्या क्या पता है? ताकि हम आपको और उसके डिटेल लेवल तक पहुंचाए और साथ ही साथ आपको ये बोर नहीं हो कि लाइक वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं. यस, व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर्स? Okay, so now what we will be learning in computers, like जैसे ह्यूमन का अगर हमको स्टडी करना है तो हमको उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, पूरा वे ऑफ हाउ द पर्टिकुलर ईच एंड एवरी ऑर्गन और द बॉडी पार्ट वर्क्स, वो हमको पता होना चाहिए. सो हियर व्हाट वी विल लर्न फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर्स कोर्स, मैं बार बार ये वर्ड लर्न इन्वॉल्व कर रही हूँ. The major reason behind using this word is learning should be in existence till we are on 4 shoulders. Till the last breath, we should be in learning mode, right? So यहाँ पे जिनका आता भी होगा तो कुछ ना कुछ आपको एड ऑन मिलेगा. So we'll keep ourselves, including me, in a learning mode. Maybe the chances are there कि I am also in adding on something to myself. So यहाँ पे अभी एज अ सिलेबस हम लोग क्या क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, विंडोज एक्सपी क्या होता है, 7 कौन सा है, किस तरीके से उसमें काम करना है, विंडोज 10 में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 या विंडोज 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो अभी कॉमनली यूज्ड आइदर डेस्कटॉप्स या लैपटॉप्स पे होती है. देन एमएस ऑफिस में 2007 से 2010 या 13, 16 या 19,
ये जो अलग अलग वर्जन्स है उसमें भी हम कैसे काम कर सकते हैं, एक बेसिक आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. यू कैन कंटिन्यू इट टूवर्ड्स लाइक आप उसका बहुत डिटेल तक आप जा सकते हो. तो इसमें हम कवर करेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट. So now to start up with, what are the parts of computers? So what are they? CPU, keyboard, monitor, mouse, scanner, mic, speakers. फिर XP में क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेस्कटॉप क्या है, स्टार्ट मेनू क्या है. अभी जस्ट आप लोगों ने अगर ये वर्ड्स जस्ट सुन लिए, जिन लोगों को पता है वेरी वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता, it would be a starting step for you. So desktop, start menu, to create a desktop shortcut, to find capacity of a drive, Windows Explorer क्या होता है, how to work on it, then how to create a new folder, moving folders from one drive to another on the hard disk, or you can say from copying the files from a CD or a pen drive to a hard drive. Then searching for your files on Windows XP, working with some wallpapers. जैसे आप लोगों ने इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था हम लोगों का सेशन, तब एक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था एक टाइगर का पोस्टर, एक फोटो, एक पोर्ट्रेट मेरे डेस्कटॉप पे था. तो हाउ टू पुट दैट फोटो, टू चेंज योर स्क्रीन सेवर एंड टू सेट द डेट एंड टाइम. विंडोज 7 में हम इससे एड ऑन फीचर्स क्या क्या है और क्या नए चीज हम लोग जो एक्सपी में नहीं कर सकते हैं और विंडोज 7 में है वो हम लोग देखेंगे. GUI बेस्ड, थोड़ा सा लोकेशन वाइज आपको एक शिफ्ट मिलेगा, बट बेसिक फंक्शनैलिटीज सेम होती है. देन विल सी MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे. बेसिक में क्या क्या आएगा, नोइंग द MS ऑफिस का जो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका एनवायरनमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे क्रिएट किया जाता है. उसके बाद फॉर्मेटिंग, टेबल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट. एडवांस में क्या आएगा, जैसे आप एक एक पेज आप बनाना सीख रहे हो, सो दैट इज कम्स अंडर your basic course. But if you are working on, suppose, a book, a research paper, or some project or some assignment that requires more than 10 to 15 pages to be compiled in one file, तो वो कैसे create करना है, how to manage it, how to create a letterhead and a template, how to do the mail merge, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन कैसे करना है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वर्ड ऑप्शंस क्या क्या है, एंड हाउ टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ड ऑप्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. बेसिक्स में आई अश्योर यू फ्रेंड्स, आप लोगों को जितना भी इसमें पता होगा, आई अश्योर यू I'll add on some more knowledge to your existing one. In Excel, we'll see the Microsoft Excel environment, how to enter and modify the data, and how to move the data from one place to other within the sheet, outside the sheet, either by cut paste or copy paste. Then using some basic functions, formatting of the text, printing, charts, and we'll take one case study so that you will understand the functionalities of these particular components. Then in advance we'll see, जैसे हम लोग टोटल करना आसान है, बट सब टोटल कैसे करेंगे, रेंज वाइज नेम्स और बाकी की चीजें हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, पिवोट टेबल्स क्या होते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस है एक्सेल में जो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करने में मदद करते हैं. एंड दे आर लाइक इफ, सम इफ, राउंड, वी लुकअप, एच लुकअप. देन हम लोगों का डेटा कभी टेक्स्ट फाइल में होता है तो उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम वन फाइल फॉर्मेट टू अनदर फाइल फॉर्मेट इन एक्सेल, तो वो भी हम देखेंगे. एंड विल डू विथ
some selected statistical functions. Okay friends, अगर हम बहुत अच्छे से ये functions पे अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते हैं, काफी अलग अलग वैरायटी के डेटा के साथ काम करते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व आप एक ही फंक्शन को अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब आप यूज करोगे तो आपके बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में मदद करता है. You should be having a that level detailed knowledge. Then PowerPoint is very easy. How to set up PowerPoint environment, how to create and apply themes, creating slides. फिर हम लोग हर चीज टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखते हैं इन PowerPoint. So how to form the bullets and numberings, how to work with the objects and some basic animations. तो ये सारा हम बेसिक में पढ़ेंगे, बट in advance we'll see how to manage the hyperlinks, how to work with the movies and sound, how to animation and do the side translation, then how to create your own slide. जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जो स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आप लोगों के आंखों के सामने दिख रहा है, दैट इज द फॉर्मेट बीइंग क्रिएटेड बाय माई सेल्फ. It is not the ready-made template that was available in MS Office. I have customized it. So how to customize your own template, that also we can work for. Then what are the various slideshow options and some doing जैसे अभी हम लोगों को अगर पढ़ने के पहले अगर प्रिंट आउट चाहिए स्लाइड्स का, तो वो कैसे करेंगे, नोट्स हैंडआउट्स के फॉर्म में कैसा उसको प्रोवाइड करेंगे, वो भी सब हम इसमें देखेंगे. So now to start up with, yes, we are at the start of. I am very much excited to be with you here. And from today onwards, we'll be working on first topic, that is parts of computers. Yeah, कितने लोगों ने ये इस तरीके का बॉक्स देख रखा है? Yes. ये इस तरीके का लंबा डब्बा, इस तरीके का बहुत बड़ा टीवी जैसा बॉक्स, सम स्पीकर्स, माइक, और ये ऐसा लंबा वाला जिसपे कुछ कीज है, वो कीबोर्ड, ये छोटा सा दैट इज माउस. ठीक है. सो नाउ टू स्टार्ट अप इन डिटेल्स विथ एवरीवन. ये जो लंबा वाला बॉक्स है, काफी लोग इसको कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, कुछ लोग इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं. ठीक है. अगर ये आपके कंप्यूटर के जैसा, मतलब आपके टेबल के ऊपर एक लंबा डिब्बा है और उसके साथ ये सारे अटैचमेंट्स हैं, तो उसको हम कैबिनेट, सिस्टम यूनिट, सीपीयू इस तरीके के नाम देंगे. बट अगर वो आपके लैपटॉप जैसा है तो वो एक फ्लैट, बिल्कुल नोटबुक जैसा एक फ्लैट स्क्रीन में सारा एम्बेडेड रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर स्क्रीन और मॉनिटर. ठीक है. तो अभी ये जो स्क्रीन या मॉनिटर है, इसको हम फ्रंट साइड जो है, ये बहुत पुराना, मतलब यू कैन से टीवी जैसा, जैसे हम लोग सीआरटी मॉनिटर्स या सीआरटी टीवीज बोलते थे, पुराने जमाने में आते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा गन होता था और उसमें आपको फ्रंट साइड में स्क्रीन पे कुछ दिखता था, तो वही टेक्नोलॉजी का ये मॉनिटर है. देन दीज आर द स्पीकर्स, कीबोर्ड, जिससे हम की एक एक छोटी छोटी जो छोटे स्क्वायर बॉक्सेस है, उनके ऊपर लेबलिंग रहता है कि ए बी सी डी. तो उस लेबलिंग के हिसाब से हम वो की एक बार प्रेस करते हैं, और जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं, the things are clear. Okay. Then mouse, जैसे अभी ये देखो आपके स्क्रीन पे एक पॉइंटर घूम रहा है, तो the moment I am shifting my mouse here and there on the screen, you will see the change in location of that pointer. तो वो पॉइंट एंड क्लिक ऑपरेशन के लिए हम लोगों के पास माउस होता है. जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये डेस्कटॉप में क्या होता है, ये सारी चीजें अलग अलग पार्ट्स में आती है. लैपटॉप में क्या होता है, ये चीजें सारी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आती है, एक ही
बॉक्स के एक ही छोटे से नोटबुक मतलब उतनी ही थिक नोटबुक साइज में ये सारी चीजें एम्बेडेड रहती है. Now, what are the various components that we have discussed? Central processing unit, memory unit, input devices, output devices, and secondary storage devices. Now, friends, as ये जो है ये हमारा ब्रेन हमारे लिए हेल्प आउट करता है टू वर्क और टू थिंक और टू टेक एन एक्शन, टू इनिशिएट टू टेक एन एक्शन. तो ये सारा कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको सीपीयू भी कहते हैं. तो उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. जैसे एक पुलिस ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि टू डायरेक्ट एट पर्टिकुलर डायरेक्शंस, कहाँ ट्रैफिक कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना है, किसको कैसे टर्न देना है, कौन कब किस प्रायोरिटी से किसको एक्सेस करेगा. तो ये सारी चीजें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है. ठीक है. तो इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. अगर आपको देखना है तो आपके सिस्टम को जब आप खोलोगे तो एक ग्रीन कलर की शीट मिलेगी. उस ग्रीन कलर की शीट पे इस तरीके का इतना बड़ा चिप रहेगा, सिलिकॉन चिप. उसमें बहुत सारी फाइन पिन्स होती हैं जिसको हम सीपीयू कहेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, जब भी हम काम करते हैं तो हमको एक मेमोरी स्पेस अवेलेबल लगता है हमारे ब्रेन में भी. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ मेरे ब्रेन में जो स्टोर्ड है उसको मेरे वर्किंग हर शब्द के साथ जोड़ के बोला जा रहा है. तो वैसे ही कंप्यूटर में जब हम ये काम करते हैं तो हमको भी एक कंप्लीट फ्लो ऑन टाइम लगता है. तो वो कंप्लीट फ्लो मेंटेन करने के लिए जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व है दैट इज मेमोरी यूनिट. तो देखिए इस तरीके का एक आईसी रहेगा जिसको आप रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हो, और इस तरीके के लंबी स्ट्रिप्स पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के आईसीज रहेंगे तो उसको आप रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं और फिर शुरू करते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको डेट टाइम जो कुछ बेसिक सेटिंग्स है वो सब आपके लिए अवेलेबल है. ओके. ऐसा आपको कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है कि लाइक कि रोज आपको डेट सेट करनी पड़ रही है या रोज आपको मतलब एवरी नाउ एंड देन यू डोंट हैव टू मेक द सेटिंग. So this is possible because of read only memory. और जो अभी हम टाइप कर रहे हैं या जो कुछ हम टेम्परेली वर्क कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट स्टोर्स द प्रोग्राम अंटिल एंड, मतलब तब तक के ही स्टोर करके रखेगा जब तक के हमारा सॉकेट ऑन है. लाइट ऑफ हो गया तो हमारा डेटा लॉस होता है. तो आई सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि एवरी टाइम you make some modifications in your file, please have a habit to save it. Every 2 minutes, your fingers should adapt in such a way that you are working with the save key. Now, next we'll see input devices. इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के 5 सेंसेस है जो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं to take some action or take some decision. तो वैसे ही कंप्यूटर पे अगर हमको कुछ काम करना है या कंप्यूटर से कुछ काम करवा के लेना है तो we need some input devices, and which those input devices are keyboard, mouse, joystick, microphone, webcam, scanner, and by mistake monitor has been written over here. Okay. So now you can see this is keyboard, this is mouse. Friends, there are variety of keyboards. So ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये जो इमेज है ये ट्रेडिशनल कीबोर्ड का इमेज है. ठीक है. कुछ कीबोर्ड्स हैं जो फ्लेक्सिबल है
देखिए बिल्कुल आप रोल करके रख सकते हो एक छोटे से बॉक्स के अंदर, जैसे हम लोग एक्रेलिक शीट्स को रोल करके रख सकते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग ये भी रोल करके रख सकते हैं। जिन लोगों को कंटिन्यूएशन में आवर्स लॉन्ग अगर कंप्यूटर पे काम करना है, तो देखिए आप जब ये फिंगर पोजीशंस अगर इसी पैटर्न में रही, तो दिक्कत होती है कि यहाँ पे रिस्ट पे आपका प्रेशर क्रिएट होके आइदर यहाँ पे पेन या डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, राइट? सो उस हिसाब से एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, जो इस तरीके के कस्टमाइज शेप से आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? देन देयर आर सम वायरलेस कीबोर्ड्स जिसमें केबल नहीं रहेगी, जस्ट through Bluetooth connector you can attach to either of your desktop or your laptop and have a distance and you can work on it. Okay, then there are PDA keyboards like your palm size keyboards. So now friends, अभी ये देखिए इस पे जो कीबोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो कीबोर्ड है इसमें अलग अलग कीज और उनका अलग अलग फंक्शन स्पेसिफाइड है. प्लीज ट्राई टू अडेप्ट दोज फंक्शंस. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये क्वर्टी कीबोर्ड है जिसमें ABCD है, 1 2 3 4 है, F1 F2 F12 है, दैट इज फंक्शन कीज. और ये जो एरो कीज है ये मूवमेंट के लिए है, 1 2 3 4, और ये सारी कीज जो है वो टाइपिंग के लिए है, ठीक है? इसको डेस्कटॉप कीबोर्ड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल कीज है, ये फंक्शन कीज है, ये नेविगेटिंग कीज है, और ये आपकी न्यूमेरिक कीपैड है. लैपटॉप के भी कीबोर्ड्स एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करते हैं जैसे डेस्कटॉप के हैं, बट इशू होता है कि दे आर इन स्मॉल साइज. गेमिंग के कीबोर्ड्स भी आ रहे हैं, और अभी मार्केट में मेनी वैरायटी ऑफ गेम्स जिसमें 3D 4D 5D तक अप्रोच आ रहा है, तो उस हिसाब से जो कीबोर्ड्स हैं वो भी उस हिसाब से कस्टमाइज्ड रहेंगे. So this is the ergonomic keyboard that I have discussed. Friends, अभी मार्केट में ऐसा भी कीबोर्ड आया है कि जस्ट यू प्रोजेक्ट इट ऑन द सरफेस लाइक योर टेबल और डेस्क, और आप उस पे टाइप करो एंड द थिंग्स आर डन. यू नीड नॉट कैरी द कीबोर्ड्स that we have seen earlier. Now we'll see mouse. There are of two types, that is mechanical and optical. मैकेनिकल में आपका जो मूवमेंट ऑफ पॉइंटर है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉल होता है, उसके XY कोऑर्डिनेट्स पे जब वो मूवमेंट करेगा तब वो मेंशन रहता है. और ऑप्टिकल में जो रेड कलर का लेजर बीम होता है उसके ऊपर वो काम करता है. कनेक्टर्स के हिसाब से भी माउस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है या समझा जा सकता है या डिफरेंशिएट किया जा सकता है. देखिए इसको PS2 कनेक्टर कहते हैं. सीरियल माउस इस तरीके के होते हैं, और USB कॉर्डलेस माउस. USB माउस अगर हम बोलेंगे तो जैसे हम लोग पेन ड्राइव का सॉकेट अटैच करते हैं तो वैसे ही पेन ड्राइव के जैसा ही USB का भी माउस का भी रहेगा. और कॉर्डलेस माउस में एक ब्लूटूथ कनेक्टर अटैच होता है आपके आइदर डेस्कटॉप या लैपटॉप को, और अकॉर्डिंगली आप उस पे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है इनके अलावा ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, टच पैड, टच स्क्रीन, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस है. देन जॉयस्टिक, गेम्स जिसमें हम खेलते हैं. लाइट पेन्स जिसमें हम लिखते हैं, या जैसे क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं वो जब कमेंट्री देते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे जो क्रिकेट ऑन फील्ड जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसको स्क्रीन पे बाय यूजिंग सम इंक ट्रेसेस डिस्प्ले करते हैं कि यस इसने ऑन साइड या ऑफ साइड खेला होता तो ऐसा होता, लाइक दैट. और सेम हैपेंस विद द स्टाइलस. नेक्स्ट इज स्कैनिंग डिवाइसेस, जिसमें ऑप्टिकल स्कैनर्स हैं, कार्ड रीडर्स हैं, बारकोड रीडर्स हैं, और कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, जिसमें हम शॉपिंग में देखते हैं बारकोड रीडर्स यूज होते हैं बैंक्स में,
मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती हैं, और कार्ड रीडर्स जनरली ऑफिसेस में या ऑर्गेनाइजेशंस में कार्ड रीडर्स यूज होते हैं फॉर योर अटेंडेंस। देन इमेज कैप्चर करने के लिए इस तरीके के डिजिटल या मतलब जस्ट सिंपल इमेजेस के लिए कैमरास होते हैं या फिर वीडियोस के लिए भी। नाउ विल सी द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, ऑडियो स्पीकर्स, प्रिंटर, प्लॉटर, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम आउटपुट पे ले सकते हैं। आउटपुट मतलब क्या? इनपुट डिवाइसेस ने कुछ इंफॉर्मेशन ली, उसको कंप्यूटर के ब्रेन ने उस पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया और वापस से रिवर्ट बैक किया रिजल्ट, और वो रिजल्ट ऐसा था जो यूजर को एक्सपेक्टेड था या यूजर उसको समझ सके। सो दैट आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर, और जैसे अभी डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, या आपको आवाज सुनाई दे रही है तो स्पीकर्स, या इसका अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंटर। So now we can see there are two types of monitors available in front of you. One is CRT monitor, other one is LCD, that is liquid crystal display. एकदम थिन वाला मॉनिटर होता है, और जब आप इसके स्क्रीन को टच करोगे ना, तो जहां पे आप टच करोगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे हम लोग पानी में टच करते हैं तो कैसे थोड़ा सा हल्का सा एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, तो वैसा आपको वहां पे डिफ्लेक्शन फील होगा। देन प्रिंटर्स में दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी आपने हेड एक ऐसा स्क्रैच करने वाला इक्विपमेंट लिया और उसको पेपर पे घसते हुए उसका इम्प्रेशन, रिबन पे घसते हुए पेपर पे उसका इम्प्रेशन क्रिएट किया, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी जैसे हम लोग ब्रश से पेंटिंग करते हैं, जस्ट बाय throwing or blowing the colors on the paper, you can create the either text or graphics. They are non-impact printers. तो impact printers में generally आते हैं डेजिविल printers, line printers, dot matrix printers and your band printers भी आते हैं. There are many. और non-impact printers में like laser, ink spray, inject, ये देखिए ये डॉट मैट्रिक्स है, ये लेजर है, ये इंजेक्ट है। ओके, देन स्टोरेज डिवाइसेस हम लोगों के पास में है, अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है फ्लॉपी डिस्क, बट 20-25 साल पहले दिस वाज द मेजर स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद ये है जिप डिस्क, इससे थोड़ा बड़ा है, इसका साइज 3.25 इंच डायमीटर है, बट उससे मोर देन 40 to 50 टाइम्स उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 250 MB का है और ये 1.44 MB, तो ऑलमोस्ट 250 या 200 टाइम्स मोर डाटा इसमें रखा जा सकता है। देन दिस इज द हार्ड डिस्क, जो हमारे डेस्कटॉप या जो लंबे कैबिनेट्स वाले आपने कंप्यूटर्स देखे उसमें रहेगी। ये हार्ड डिस्क अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो बिल्कुल इतनी पतली होती है, बट अगर कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप वाला है उसमें देखोगे तो एक नोटबुक के साइज की आपको दिखाई देगी। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडीज बोला जाता है, जिसमें आप मल्टीमीडिया या कुछ भी ड्राइवर्स वगैरह रख सकते हो, तो वो अलग अलग वैरायटीज में आती है। देन जितने भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं, जितना भी हेवी डिजिटल मीडिया हम लोग देखते हैं, तो दैट कम्स इन ब्लूरे डिस्क। फिर डीवीडीज में होता है, अगर 4 GB तक का है तो 600 या 700 MB के रेंज में डेटा अगर है तो आपका वो सीडीज पे आता है, और बियॉन्ड दैट जा रहा है तो ब्लूरे डिस्क पे आता है। सो नाउ विल सी CD ROM, CD राइटर, DVD which has a combo facility, मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। other than that there are various secondary storage devices like you can say हमारे कार्ड रीडर्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होते हैं, छोटे से SD कार्ड होते हैं, तो ये सारे हम लोग रखते हैं। और फाइनली पावर सप्लाई। ओके,
तो ये जो पावर सप्लाई है ये देखिए पीछे से इस तरीके से कनेक्टेड रहता है आपके कंप्यूटर को, और यहाँ पे एक स्विच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे हैं, ये कंपोनेंट्स आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई आज का जो क्लास हम लोगों ने लिया इसमें हम लोगों ने ये एक बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की है कि डायरेक्टली आपको एमएस ऑफिस या विंडोज या फर्स्ट क्लास ना स्टार्ट करते हुए स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको हर पार्ट के बारे में एक ओवरव्यू आपके पास रहे। ठीक है, ये डेटा जब हम लोगों ने करेक्ट किया है, क्रिएट किया है, so I took the help of these references. Okay, so friends, I guess I could reach up to you. Anyone having any doubts? Anyone having any doubts? Tomorrow we'll be working with MS Windows से हम लोग start करेंगे. Okay, as per the syllabus that I have shared.